Nobody in the hospital registers the FIR. No, the father registers the. What was the principal or the vice principal? What were the authorities of the hospital doing? Gather without the consent. One second. Allow me. This is- 7,000 people can never gather without knowledge. What are they doing? That's- They That's- allow vandals to enter the hospital. What was the principal doing? Why did he not? One, why was this kind of inaction on the part first an attempt to pass this off as a suicide instead of a murder? 11:45 in the No, 245 letter was sent. Assistant Superintendent sent a letter of कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर ट्रेनी के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या की वारदात का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल की ममता सरकार को फटकार ही लगा दी है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस दुष्कर्म के मामले पर स्वतः संज्ञान लिया और बंगाल की ममता सरकार को कटघरे में खड़ा किया। सीधे सीधे फटकार लगाते हुए ये सवाल पूछ डाला कि क्या आप एक और रेप के होने का इंतजार कर रहे थे? The FIR is registered at 11:45 in the night, Mr. Sibal. Yeah. And who was expected to register? Yeah. Nobody in the hospital registers the FIR. No. The father registers the. What was the principal or the vice principal? What were the authorities of the hospital doing? Mr. Sibal, it is the Application obligation was made of the before the Seattle authorities court. of the hospital. Yeah. The parents are not present in the hospital when the murder takes place. Yes. It's the obligation of the authorities of the hospital to register an FIR the moment they 245 it was done. 245 done. The letter was sent. 11:45 in the No, 245 letter was sent. Assistant Superintendent sent a letter of at 245 minutes. What was the principal doing? Why did he not? One, why was this kind of inaction on the part first an attempt to pass this off as a suicide instead of a murder? I'm sorry, Mother, that's not correct. Not recording, not registering an FIR till late in the evening. Third, the body itself is handed over to the parents sometime in the evening for cremation. Fourth, and that's a matter of very serious concern. On the next day, the doctors, because they were all doctors working with her, the doctors are on protest. A group of persons, a mob assembles at the hospital. The hospital is invaded and the critical facilities are damaged in the morning or whenever the mob enters. What was the police doing? Yes. Mother, we have videos for all. Mother, let me first of all state. Surely, Mr. Sibal, What? the police, Mother, a very serious offense has taken place. The crime scene is within the precincts of the hospital. Now, that is the first thing that the police have to do, namely to protect the crime scene. What are they doing? that's Nothing. They allow vandals to enter the hospital. It's impossible that 7,000 people first can of all, gather without of all, the consent. Please, one second. allow me. This is- 7,000 people can never gather without knowledge or consent of the This is not an adversarial litigation. It's not. Therefore, let us not be in denial mode. One girl has lost life One second. by not only the sexual pervert, he is an animal. Principal, after the principal resigns from this medical college, He sent to another he's appointed as a principal of another college. सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से 22 अगस्त 2024 तक टास्क स्टेटस रिपोर्ट और राज्य सरकार से इस घटना की रिपोर्ट मांगी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए नेशनल टास्क फोर्स का गठन करते हुए ये तक कह दिया कि देश एक और रेप का इंतजार नहीं कर सकता है। सीआईएसएफ को दिया अस्पताल की सुरक्षा का जिम्मा। आरजीकर अस्पताल की सुरक्षा का जिम्मा सीआईएसएफ को दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से 22 अगस्त 2024 तक टास्क स्टेटस रिपोर्ट और राज्य सरकार से घटना की रिपोर्ट मांगी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए नेशनल टास्क फोर्स का गठन करते हुए ये तक कह दिया कि देश एक और रेप का इंतजार नहीं करेगा। आरजीकर अस्पताल की सुरक्षा का जिम्मा सीआईएसएफ को दिया गया है। 20 अगस्त को सुनवाई के दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने ये कहा कि सिर्फ कोलकाता में हत्या का मामला नहीं है, ये मुद्दा देश भर में डॉक्टर्स की सुरक्षा का है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने यह भी कहा कि हम डॉक्टर से अपील करते हैं कि वे काम पर लौटें। हम उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पर हैं। हम इसे हाईकोर्ट के लिए नहीं छोड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद से दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर्स ने अपनी हड़ताल को खत्म कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर जिस नेशनल टास्क स्टेटस फोर्स का जो गठन किया है वो एक्चुअली में है क्या, उसका कामकाज क्या है और डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर किस तरह से वो निगरानी करेगी, इस बारे में भी हम जान ही लेते हैं। नेशनल टास्क फोर्स के जो प्रमुख कार्य हैं उसमें सबसे पहले चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा, भलाई और अन्य संबंधित मामलों पर विचार करना है। लिंग आधारित हिंसा को रोकना, इंटर्न, रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट डॉक्टर्स के सम्मानजनक कामकाज के लिए एक राष्ट्रीय योजना ये टास्क तैयार करेगी। इसके अलावा टास्क फोर्स इन विषयों पर अपनी रिपोर्ट भी देगी। अब ये भी हम जान लेते हैं कि डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आखिरकार एक्शन प्लान क्या है। इमरजेंसी रूम में अतिरिक्त सुरक्षा की सुविधा होनी चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है। इसके अलावा अस्पताल में हथियारों को ले जाने से रोकने के लिए पर्याप्त स्क्रीनिंग की व्यवस्था दी जानी चाहिए। यदि कोई मरीज नहीं है तो अनावश्यक लोगों को अस्पताल में एंट्री न दी जाए। भीड़ को काबू करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा कर्मियों के तैनाती की बात सुप्रीम कोर्ट की ओर से कही गई है। डॉक्टर्स और नर्सों के लिए महिला और पुरुष के हिसाब से अलग अलग रेस्ट रूम और कॉमन रूम की व्यवस्था की बात भी कही गई है। इसके अलावा बायोमेट्रिक और फेशियल रिकॉग्निशन की व्यवस्था करने की ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया है। पर्याप्त लाइटिंग और सीसीटीवी की व्यवस्था अस्पतालों में होनी चाहिए। चिकित्सा पेशेवरों को रात 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक वाहन की सुविधा दी जानी चाहिए। दुख और संकट से निपटने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन भी अस्पताल के द्वारा किया जाना चाहिए। संस्थागत सुरक्षा उपायों का तिमाही ऑडिट होना चाहिए और इसके अलावा आने वाले लोगों के अनुरूप पुलिस बल की स्थापना भी की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी के बाद बंगाल की ममता सरकार इस पूरे प्रकरण में अब क्या कदम उठाती है और दुष्कर्म जैसे मामलों से निपटने के लिए क्या वो पहले की ही तरह देरी करेगी या फिर अब जल्द से जल्द इन मुद्दों को निपटाने की कोशिश करेगी, ये तो बात की बात है। फिलहाल ऐसी ही कई और खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए जीजीसी के लिए और जीजीसी को देखने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।